جب دنیا اپنے اختتام پر ہوگی، یعنی قرب قیامت، جب تجھ میں تمام اہل زمین و آسمان کی طاقت رکھ دی گئی ہے، اس وقت شیطان مردود بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی کہ کہاں بھاگے۔ یہ پاگلوں کی طرح کبھی مشرق کی طرف بھاگے گا، کبھی مغرب کی طرف بھاگے گا، کبھی سمندر میں ہوتے لگائے گا، مگر جہاں پر بھی جائے گا حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کو سامنے پہلے سے ہی ملیں گے۔ اسی طرح بھاگتے دوڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے مزار پر پہنچے گا ابلیس، اور جہاں آپ کی قبر ہے وہاں پہنچے گا اور کہے گا کہ اے آدم، الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ حمد و صلاۃ کے بعد درود پاک کی فضیلت پر حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ درود پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ درود پڑھنے والے کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ درود پاک کی اور بھی کئی ساری فضیلتیں ہیں،
اس میں فرمایا گیا اس حدیث میں کہ میں اس درود والے کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جس کو حضور علیہ السلام کی دعا مل جائے اس کے وارے واقعی نیارے ہو گئے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے ان صلاتک سکن لہم، کہ اے محبوب آپ کا دعا کرنا ان مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، آپ کی دعا سے انہیں سکون ملتا ہے۔ تو ہمیں سکون کی ایک جگہ مل گئی، ایک راہ مل گئی کہ سکون کیسے ملے گا ہمیں۔ فرمایا حضور علیہ السلام کی دعا سے بھی بندے کو سکون ملتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی دعائیں جس بندے کے ساتھ ہوں اس سے آفتیں ٹل جاتی ہیں، اس سے بلائیں دور ہوتی ہے۔ حضور کی دعا ہی تھی کہ جس سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، حضور کی دعا تھی کہ سورج واپس پلٹ آیا۔ حضور کی دعا سے بندے کی دنیا آخرت سنور سکتی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ 34 یعنی خطبے میں تلاوت ہوئی، جس میں اللہ پاک فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس آیت کریمہ میں انسانوں کی ابتدا کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، تو اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ انہیں سجدہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا پورا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ پہلے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے، تمام چیزوں کے نام بتائے، پھر فرشتوں کے سامنے انہیں ظاہر فرمایا۔ فرشتوں سے پہلے کہا کہ اے فرشتوں تم ان کے بارے میں بتاؤ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا لا علم لنا، ہم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا قال انبئهم باسمائهم، آپ ان کے نام بتائیں۔ فلما انبأهم باسمائهم، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتائے۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو اب یہ علمی طور پر تم سے زیادہ ہیں، یہ فضیلت والے ہیں، یہ شرف والے ہیں، تم انہیں سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ پاک اس کو یوں ذکر فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور ہم نے کہا، کس سے کہا؟ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا۔ کیا کہا؟ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم، سجدہ کرنے کا حکم تمام فرشتوں کو تھا، اور شیطان جس کا اس وقت نام عزازیل تھا، شیطان کا نام اس وقت عزازیل تھا، وہ بھی چونکہ بہت عبادت گزار تھا، نیک پرہیزگار تھا، اس نے اپنے اندر فرشتوں والی صفات پیدا کر لی تھی، اس لیے یہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اصل میں یہ جن تھا، ابلیس اصل میں جن تھا، عبادت کر کر کے یہاں تک کہ یہ فرشتوں والی صفات وہاں فرشتوں کے قرب تک پہنچ گیا۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ عبادت۔ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں جائز نہیں ہے، اور سجدہ عبادت شروع سے لے کے قیامت تک جو عبادت کے لیے سجدہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی شرک تھا، اس امت میں بھی کسی اور کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا یہ شرک ہے۔ اور مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر، آپ کی پیشانی میں، آپ کے ماتھے مبارک میں، آپ کی جبین میں آقا نامدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام کا نور
हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर था, अल्लाह पाक ने वो नूर रखा, तो फरमाया फरिश्तों को जो हुक्म दिया गया था वो असल में सजदा उस नूर को था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के किबला थे और असल मकसूद इमामुल अंबिया को सजदे ताज़ीमी करवाना था, हुजूर की शान बतानी थी। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया, फरिश्तों ने सजदा किया। अल्लाह पाक ने जब हुक्म फरमाया तो सबसे पहले सजदा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने किया। और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह पाक ने उनके माथे पर पूरे कुरान करीम को लिखा। ये उनकी इताअत में जल्दी की वजह से उन्हें शर्फ अता फरमाया कि उन्होंने अल्लाह पाक का हुक्म जल्दी माना, तो अल्लाह पाक ने कुरान करीम तमाम आसमानी किताबों की सरदार किताब, मुकद्दस किताब, कलाम इलाही उनके माथे पर लिख दिया। ये फजीलत मिली उन्हें। और वजह इताअत में जल्दी करना। इताअत में अल्लाह पाक ने जैसे हुक्म फरमाया, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फौरन सजदे में चले गए। फिर उसके बाद बाकी फरिश्तों ने भी सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने जो सजदा किया और जल्दी सजदा किया और उनको यह फजीलत दी गई। ऐसे ही हमें भी चाहिए कि नेकी के काम में हम भी जल्दी करें, नेकी का काम को करना हो उसमें जल्दी करें। वैसे तो ये बात है कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है, वो दुनियावी कामों में है। नेकी के काम में सबकत ले जाने में हम जल्दी किया करें। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में है, बहुत हैरान होंगे कि एक बार आप गुस्ल फरमा रहे थे। सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन गुस्ल फरमा रहे थे। आपके जहन में फौरन ख्याल आया कि मैं कपड़े सदका करूं। आपने जल्दी से पर्दे का एहतमाम किया, बाहर आए और अपने बेटे को कहा कि बेटा ये कपड़े सदका कर दो। वापस गुस्ल खाने में गए, जब बिल्कुल फ्री होकर वापस आए, फिर किसी ने कहा कि इतनी भी क्या जल्दी थी? जवाब दिया कि मुझे ख्याल आया कहीं शैतान मेरे इरादे को बदल न दे, कुछ देर के बाद मेरा इरादा बदल न जाए कि नहीं है। फरमाया इसलिए मैंने नेकी का काम, जैसे ही मुझे नेकी का काम ये जहन में आया, ख्याल आया, मैंने फौरन नेकी का काम कर दिया। तो इससे हमें पता चला नेकी का काम में हो, नेकी का काम हो तो उसमें हमें जल्दी करनी चाहिए, यानी फौरन कर लेना चाहिए। और इब्लीस को जो हुक्म हुआ, बाकी फरिश्तों ने तो सज्जा किया, इब्लीस ने सज्जा नहीं किया। उसने कहा अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया, इनकार किया, वकाना मिनल काफिरीन, और काफिर हो गया। फिर अब अच्छा, इसका जो अब कियामत में दर्दनाक अंजाम होगा वो भी अभी जिक्र होगा। इसने इनकार जो किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, ये तौहीन नबी है। सजदा जो था वो इबादत के लिए थोड़ी था हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, वो ताज़ीम के लिए था। वो सजदा ताज़ीम के लिए था। नबी की ताज़ीम, तौक़ीर, एहतराम, शान, मकाम, मर्तबा, बुलंद, वो चीज बतानी थी मकसूद। इब्लीस ने वो सजदा नहीं किया, अल्लाह का हुक्म ही नहीं माना। आज के हम जदीद लफ्जों में अगर एक लफ्ज कहें, शायद किसी को समझ आ जाए या जिन्हें मालूम होगा वो ये बात समझ जाएगा। इब्लीस को कहा कि सजदा करो, इब्लीस ने कहा आदम तो शायद कोई नहीं, अल्लाह के जैसे तो है ही कोई नहीं, आदम तो शायद कोई नहीं, मैं क्यों इनको सजदा करूं। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया जा फिर दफा हो यहां से, उसको निकाल दिया जन्नत से। उसने कहा मुझे मोहलत दो, उसको मोहलत दी क़यामत तक के लिए। ठीक है, मोहलत है तेरे को। इब्लीस ने क्या किया? तौहीन नबी की, कि अल्लाह ने उन्हें सजदे का हुक्म दिया कि इनको सजदा करो, नहीं किया। अच्छा, अब इब्लीस का अंजाम क्या होगा? इब्लीस का अंजाम क्या होगा? इब्लीस का अंजाम सुनिए। हजरत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल है, और ये वो सहाबी हैं जो इस्लाम लाने से पहले यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, यानी पहले आसमानी किताब उसके भी आलिम, फिर इस्लाम ले आए तो अब मुसलमानों की जो
किताब है कुरान मजीद, इसके भी आलिम, दोनों दीन, आसमानी दीन के ये आलिम थे। ये फरमाते हैं जब दुनिया अपने इख्तिताम पर होगी, यानी कुर्ब क़ियामत, जब दुनिया अपने इख्तिताम पर होगी, सूर फूके जाने के बिल्कुल करीब होगा, उस वक्त लोग बाजारों में होंगे, कुछ आपस में बातें कर रहे होंगे, कुछ आपस में झगड़ रहे होंगे, कुछ खरीदारी में मसरूफ होंगे। अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज आएगी, उसे सुनकर आधे लोग बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। उसे सुनकर, सूर फूकने की आवाज को लोग सुनकर बेहोश होकर गिर जाएंगे। अच्छा, बात यह ध्यान में आती है, सूर फूकने की आवाज से बंदा बेहोश कैसे होगा? अच्छा, एक हदीस में यह भी बताया गया कि जब सूर फूके जाएंगे तमाम लोग मर जाएंगे। इससे ये बात कैसे हो? इसको आप यूं समझें, आज भी अगर जब कभी बारिश होती है तो बादल गरजते हैं, बहुत फुल गरजे ना, बंदे का दिल धड़कने लगता है, बहुत ऐसे लगता है बस अभी आसमान गिर पड़ेगा। कभी कभी ऐसे फुल तेज बादल गरजते हैं। तो उस ये तो अच्छा, ये वैसे बारिश होती, उस वक्त तो होगा ही क़ियामत का मंजर। उस वक्त ऐसी कैफियत होगी कि लोग उस खौफ से, उस आवाज से डर के मर जाएंगे। तो उस वक्त जब सूर फूका जाएगा, लोग बेहोश होकर गिर जाएंगे, फिर 3 दिन तक उन्हें होश ही नहीं आएगा। बाकी आधे लोगों की अकल जवाब दे जाएगी, अकल खत्म हो जाएगी, लोग पागल हो जाएंगे। जैसे किसी को कोई सदमा पहुंचता है, हमारे जमाने में भी कभी ऐसा होता है, किसी के बारे में हम सुनते हैं फला बंदा फला वाकये की वजह से, सदमे, हादसे की वजह से पागल हो गया, ऐसे हो जाए, वो लोगों की ऐसी कैफियत हो जाएगी। अभी लोग इसी हालत में होंगे, अभी लोग इसी हालत में होंगे कि जमीन और आसमान के दरमियान बिजली गरजने जैसी जोरदार आवाज गूंजेगी, उसके साथ ही दुनिया फना हो जाएगी, उसके साथ ही दुनिया फना हो जाएगी। ये वो वक्त है जिस वक्त तक शैतान को मोहलत दी गई है, जिस वक्त तक शैतान को मोहलत दी गई है। अब अल्लाह पाक हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते हैं, उन्हें हुक्म देगा, मलकुल मौत को अल्लाह पाक हुक्म देगा, ए मलकुल मौत, मैंने अगले पिछलों की गिनती के बराबर तुम्हारे मददगार बनाए। जितने लोग थे तमाम इंसानों के बराबर इतने फरिश्ते तुम्हारे मददगार बना दिए हैं। तुझ में तमाम अहले जमीन और आसमान की ताकत रख दी गई है। जितने जमीन में इंसान हैं उन सब इंसानों के बराबर तुम्हें ताकत दे दी गई है, और आसमान में जितने फरिश्ते हैं उन सब के बराबर तुम्हें ताकत दे दी गई है। आज तुम्हें गजब का लिबास पहनाया जाएगा, आज तुम्हें गजब का लिबास, गुस्से कहर का लिबास पहनाया जा रहा है। आज मेरे गजब के साथ शैतान के पास पहुंचो और उसे मौत का मजा चखाओ। और आज तक जितने जिन्नों और इंसानों पर मौत की तकलीफें तारी हुई है, उन सब की तकलीफों के मजमूए से भी कई गुना ज्यादा तकलीफ उस मरदूद पर तारी कर दो, और उसके साथ ही दरोगा जहन्नम, उसको जहन्नम के दरवाजे खोलने का हुक्म दे दिया जाएगा। फिर हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी खौफनाक शक्ल के साथ शैतान के पास आएंगे कि अगर आप उसकी शक्ल और सूरत को जमीन और आसमान वाले देख लें तो बर्फ की तरह पिघल जाएंगे। हजरत मलकुल मौत की शक्ल को उस वक्त जमीन और आसमान वाले देख लें तो खौफ के मारे पिघल जाएंगे। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम शैतान को झड़केंगे, जिसको हम कहते हैं डांटना, शैतान को झड़केंगे। आपके झड़कने की आवाज ऐसी गरजदार होगी कि अगर मगरिब और मशरिक वाले लोग उसको सुन लें तो उनकी अकल काम करना छोड़ दें। ये हैबतनाक मंजर देखकर शैतान भागेगा। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, ऐ खबीस, रुक जा, तूने आज तक जितनों को गुमराह करके जहन्नम तक पहुंचाया है, आज तुम्हें उन सब की तकलीफ के बराबर तकलीफ में मुब्तला किया जाएगा। तूने कितनी लंबी जिंदगी पाई, कितनों को गुमराह किया, कितनों को जहन्नम में पहुंचाया,
वो सब जहन्नम में तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरी मोहलत खत्म हुई, अब भाग कहां तक भागता है। उस वक्त शैतान मरदूद भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको कोई जगह नहीं मिलेगी कि कहां भागे। ये पागलों की तरह कभी मशरक की तरफ भागेगा, कभी मगरब की तरफ भागेगा, कभी समंदर में होते लगाएगा, मगर जहां पर भी जाएगा हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको सामने पहले से ही मिलेंगे। इसी तरह भागते दौड़ते हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजार पर पहुंचेगा इब्लीस, और जहां आपकी कब्र है वहां पहुंचेगा और कहेगा कि ऐ आदम, तुम्हारी वजह से मैं मरदूद हुआ, काश तुम पैदा ही ना हुए होते। अल्लाह की पनाह, देखो शैतान की ये कैफियत है। गलती उसकी अपनी है कि उसने सजदा नहीं किया आदम को, अब भी अपनी गलती सामने वाले को ठोक रहे थे, तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हुआ है। क्या अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहा? हुक्म हुआ सजदा करो, सजदा नहीं किया, अब अपनी गलती को भी कहेगा कि ऐ आदम, तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हुआ कि मैं मरदूद किया गया। अब ये भागता दौड़ता इस जगह आएगा जहां पहली बार मरदूद होकर जमीन पर उतरा था। यहां जमीन आग की तरह दहक रही होगी, जहन्नमियों को हाँकने वाले फरिश्ते उसे घेर लेंगे और उसे कांटे और जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। अब जब तक अल्लाह पाक चाहेगा ये नज़ा की हालत में तकलीफ और दर्द में मुब्तला रहेगा। जो मौत के वक्त बंदे की कैफियत होती है, सकरात के वक्त बंदा तकलीफ में होता है, शैतान उस दर्द और तकलीफ में रहेगा जितनी देर अल्लाह पाक चाहेगा। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हवा को अल्लाह पाक जिंदा फरमाएगा, उन्हें उठाएगा। अल्लाह पाक उन्हें फरमाएगा, ऐ आदम, ऐ हवा, ये शैतान, ये तुम्हारा दुश्मन, देख लो कैसे अजाब में गिरफ्तार है। जब वो इस बदबख्त को हालत नज़ा में तड़पते तकलीफ के सबब लूट फूट होते देखेंगे तो कहेंगे, रब्बना कद अतममता अलैना अन्यामता, ऐ हमारे रब, तूने हमारे दुश्मन को ऐसी सजा देकर तूने हम पर अपनी नेमत तमाम कर दी, यानी पूरी कर दी। आखिर शैतान मरदूद तड़प तड़प कर मौत के घाट उतर जाएगा। ये शैतान का अंजाम है, जिसकी कुछ वजाहत की है कि इसकी मौत कैसे होगी, कैसे सख्त फरिश्तों का एक झुरमट आएगा और हैबतनाक शक्ल में आएंगे, शैतान इधर उधर भागेगा, उसको कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी, और उसको कहा जाएगा कि तूने कितने लोगों को गुमराह किया है, अल्लाह की नाफरमानी पे लगाया है, गुनाहों में लगाया तूने उन्हें, अल्लाह के नेकी के कामों से उन्हें रोका तूने। अब जितने लोग गुमराह हुए हम सब के बराबर तुझे भी तकलीफ दी जाएगी, उन्हें भी तकलीफ दी जाएगी, और वो सब जहन्नम में है। अब तू भी उधर चल, शैतान को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। शैतान का ये दर्दनाक अंजाम क्यों हुआ? अल्लाह की नाफरमानी की वजह से। अल्लाह की नाफरमानी की वजह से आज लोग बहुत सारे अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और उसको अपनी अकल पे लाते हैं। मिसाल के तौर पे सूद अल्लाह ने क्यों हराम किया? भी सूद हराम क्यों है इस्लाम में? भाई आपको जरूरत क्या है ऐसा सवाल करने की? अल्लाह ने हुक्म दिया, आप बात मानो, बस बात खत्म। नमाज पढ़ने का क्यों हुक्म दिया गया? नमाज से क्या है? अल्लाह ने हुक्म दिया, आप बात को मानो, इस पे लॉजिक तलाश नहीं करो, इस पे अपनी अकल नहीं दौड़ाओ, अपनी अकल को इस्तेमाल में नहीं लाओ कि इसमें ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसे है वैसे। अल्लाह ने हुक्म दिया। इब्लीस ने भी तो यही कहा था ना, आदम को सजदा क्यों करो, वो तो मिट्टी से पैदा किया गया है, जबकि मैं आग से पैदा किया हूं, मैं आग से आला हूं, मैं बेहतर हूं। अल्लाह पाक ने उसको कोई जवाब तो नहीं दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया बस ठीक है, तू बात नहीं मान रहा, निकल जा जन्नत से, यहां से तू मरदूद होके निकल जाए यहां से। तो अब हमें भी ऐसा करना चाहिए कि जो बात अल्लाह की हम तक पहुंच जाए, अल्लाह का हुक्म हम तक पहुंच जाए, हमें मालूम है ये अल्लाह का हुक्म है, इस्लाम का हुक्म है, हम उसको बात माने, उसको माने, उस पर अमल करें, उस पर अपनी तौजीहात पेश न करें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अदा फरमा लीजिए।